حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو عذاب کا مستحق اور لعنت کا مستحق قرار دیا جو لوگ اس دنیا میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اپنے قول و عمل کے ذریعے سے جو لوگ نبی کو تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت اور عذاب کے مستحق ہیں۔ والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وَلَعَنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایسے لوگ ملعون ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت اترتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ میں غور کیجیے، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ اس دنیا میں اپنے قول و عمل کے ذریعے سے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر غلط بیانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی غلط بیانی کا شکار بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کا لعنتیں پیچھا کرتی ہیں، ان کے پیچھے لعنت لگی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی ایسا شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ایسا شخص اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کے عتاب اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی گرفت اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتا ہے، دیر ہی صحیح، تاخیر سے صحیح، لیکن اللہ رب العالمین کی گرفت سے ایسا شخص بچ نہیں سکتا۔ اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ایسے لوگوں کے پیچھے لعنتیں لگتی ہیں، ایسے لوگوں کا پیچھا لعنتیں کیسے کرتی ہیں، ایسے لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کے عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت کے شکار کیسے ہوتے ہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو تاریخ میں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ نبی کی سیرت کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب میں سے ایک شخص اسلام لاتا ہے، اہل کتاب میں سے ایک عیسائی اسلام قبول کرتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، نبی سے اتنی قربت اس کی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کاتب وحی میں شامل کر دیا۔ جو لوگ وحی کو لکھا کرتے تھے، آسمان سے جو وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو متعین کیا تھا، مقرر کیا تھا، جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی کاتبین وحی میں شامل کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، عیسائی تھا، اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد اپنے قبیلے میں جاتا ہے، قبیلے میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعوذ باللہ اس نے نشانہ بنایا، نبی کی ذات پر غلط بیانی کی، نبی کی ذات پر تبصرہ کیا، نبی کی شان میں گستاخی کی، اور یہاں تک اس نے کہا کہ میں جو لکھ کر دیتا ہوں وہی نبی پڑھ کر سناتے ہیں، اور میں نعوذ باللہ اپنی طرف سے وہی میں ہیر پھیر کیا کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے اللہ رب العالمین کی پھٹکار، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر کیسے نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، جب اس کی وفات ہوئی، جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ مر گیا، لوگوں نے اس کے جو رشتہ دار تھے، اس کے جو قرابت دار تھے، ان کے رشتہ داروں نے، قرابت داروں نے، قبیلے اور خاندان کے لوگوں نے گڈھا کھودا اور اسے دفن کیا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، گڈھا کھودا، اس سے دفن کیا۔ دوسرے دن دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر۔ عیسائیوں نے سوچا ہو نہ ہو یہ مسلمانوں کی کرتوت ہو، کیونکہ یہ مسلمان ہوا تھا، اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا، دوبارہ اس نے اس سے گہرا گڈھا کھودا اور دوبارہ دفن کیا۔ دوسرے دن بھی دیکھا اس کی لاش قبر سے باہر ہے۔
तीसरे दिन लोगों ने बहुत गहरा गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को कब्र में दफनाया, लेकिन तीसरे दिन भी जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन पर उसकी लाश को हराम कर दिया। तब उसके कबीले, उसके खानदान, उसके रिश्तेदारों ने समझ लिया कि नहीं, ये मुसलमानों की करतूत नहीं, बल्कि ये इसकी अपनी करतूत है। जो ये मुर्तद हुआ मुसलमानों के तायू, नबी के तायू, इस्लाम के तायू, इसने जो गलत बयानी की, नबी की शान में इसने जो गुस्ताखी की, उसका इससे ये अंजाम मिला है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के जरिए से उस शख्स को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशान इबरत बना दिया। गोया जो लोग भी इस दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को निशाना बनाते हैं, तंज करते हैं, गलत बयानी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला देर ही सही अपने अजाब के गिरफ्त में जरूर लेता है। आप देखिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबवी में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बहुत सारे वाकयात ऐसे भरे पड़े हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के जरिए से उन लोगों को, जिन लोगों ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंजो तबसरा किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात में गलत बयानी की, नाजेबा जुमले कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की, आपको रुसवा और जलील करने की जिन लोगों ने भी कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत के जरिए से उन्हें निशान इबरत बना दिया, नमूने इबरत बना दिया। इसी तरीके से आप देखिए हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल किया। ईसाइयों के बड़े बड़े आलिम, ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी एक मर्तबा मंगोलों के एक तकरीब में शरीक हुए। मंगोलों के एक तकरीब में शरीक हुए, जो तकरीब एक मंगोल शहजादे के ईसाइयत कबूल करने के खुशी मुनक्किद की गई थी। एक मंगोल शहजादा, उसने मजहब ईसाइयत को कबूल किया था, उसी की खुशी में एक तकरीब मुनक्किद की गई और उस तकरीब में ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी शरीक हुए। और जब महफिल सजी, उसी महफिल के दरमियान एक ईसाई मुबल्लिग खड़ा हुआ ईसाइयत की तबलीग करने के लिए, और उसने उस मजलिस में नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गलत बयानी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाजेबा जुमले कहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा। वहीं पर एक कुत्ता बंधा हुआ था, रस्सी से कुत्ता बंधा हुआ था, उस कुत्ते ने रस्सी तोड़वाई, झटका दिया, रस्सी टूटी और वो कुत्ता सीधे उस ईसाई मुबल्लिग पर उसने छलांग मार दी और उसे जख्मी किया। वहां जितने लोग मौजूद थे उन लोगों ने इस कुत्ते को काबू किया और उसके बाद लोगों ने कहा, तुम्हारा ये अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के नाज़ेबा जुमले कहे। उस ईसाई मुबल्लिग ने कहा कि नहीं, बल्कि मैं जब लोगों को वाज कर रहा था, नसीहत कर रहा था, मैं अपना हाथ हरकत दे रहा था, ये कुत्ता बड़ा खुददार था, हो सकता है इसने मेरे हाथों की हरकत को देखकर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। दोबारा कुत्ते को बांध दिया गया, दोबारा उसने वही जुमला दोहराया। इस मर्तबा उस कुत्ते ने पहले से ज्यादा तेज छलांग लगाई और उसकी गर्दन पर हमला किया, वहीं पर उसे खत्म कर दिया। और उसी मौके पर तकरीबन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह लिखते हैं तो उस मौके पर 40,000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया। उस कुत्ते ने जब उस गुस्ताखे रसूल को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले शख्स को इबरत का निशाना बनाया, उसने कैफरे किरदार तक पहुंचाया। जब इस मंजर को मंगोलों ने देखा, 40,000 मंगोल फौरन हल्के इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम उन लोगों ने कबूल किया। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू और आपकी इज्जत की हिफाजत हमेशा करता रहेगा। और अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जरिए से जो है बेशुमार मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। ऐसे बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, ऐसे तारीख में बहुत सारे वाकयात मौजूद है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, और आप देखिए नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, कुरान को आप पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला का एक कानून है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जितने अंबिया किराम को भेजा,
जितने अंबिया इकराम को भेजा, तमाम अंबिया इकराम के जहां उसके आमानो मददगार थे, जहां उनके हवारी थे, उनकी तायीद करने वाले, उनकी मदद करने वाले, उनके मुआफिकीन थे, उनके मुआमिनीन थे, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी के दुश्मन भी पैदा किए। आप पूरा कुरान पढ़ डालिए, अल्लाह ताला ने जहां अंबिया इकराम के मुआमिनीन पैदा किए, उनके सपोर्टर पैदा किए, जो हर मौके पर अंबिया इकराम की ताईद, अंबिया इकराम की नुसरत और मदद किया करते थे, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी के दुश्मन भी पैदा किए। कुरान पढ़िए, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। कुरान में अल्लाह ने साफ लफ्जों में कह दिया वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन। इसी तरीके से हमने हर नबी का दुश्मन पैदा किया, मिनल मुजरिमीन, मुजरिमों की जमात में से। इस सरजमीन पर समाज और मुआशरे में जो मुजरिम रहते हैं, जो मुजरिम तबका रहता है, उन मुजरिमों को हमने अंबिया इकराम का दुश्मन बनाया। वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शैतानल इंस वल जिन्न, कि हर नबी का हमने दुश्मन बनाया इंसानों में से जो शरकस मिजाज इंसान हैं और जिन्नातों में से जो शरकस मिजाज जिन्नात हैं। हमने जो है हर नबी के दुश्मन बनाए। ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां अंबिया इकराम के दोस्त बनाए, अंबिया इकराम के हवारी अंसार व आवान बनाए, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया इकराम के मुकाबले में अंबिया इकराम के दुश्मनों को खड़ा किया। अंबिया इकराम के हासिदीन पैदा हुए, अंबिया इकराम से दुश्मनी करने वाले पैदा हुए। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जरूरत क्या थी? इसका एक अहम सबक यही था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुश्मनों को, हासिदीन को इसलिए खड़ा किया ताकि अंबिया इकराम का अखलाक, अंबिया इकराम का किरदार, अंबिया इकराम की मुरव्वत, अंबिया इकराम की शराफत दुनिया वालों के सामने जाहिर हो। अंबिया इकराम, नबी कितना उलुल अज़्म होता है, नबी कितना सब्र करने वाला होता है, नबी के अंदर कितनी बर्दाश्त करने की ताकत और कुव्वत होती है, नबी कितना बाखलाक होता है, नबी कितना बाकिरदार होता है, नबी कितना दुश्मनों की गलतियों को माफ करने वाला होता है, नबी कितना दुश्मनों की गलतियों को दरगुजर करने वाला होता है। इस अखलाक और किरदार के गोशे को जाहिर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी के मुकाबले में उसके दुश्मन को खड़ा किया। और आप देखिए, नबी की सीरत पढ़े तो आपको मालूम होगा, जहां पर अल्लाह अकबर, नबी के सहाबा थे, अल्लाह अकबर, नबी के वो सहाबा जो नबी के एक इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा करें माल की कुर्बानी देने का, माल कुर्बान कर दे, जान की कुर्बानी देने का, जान कुर्बान कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहाबा इकराम हमेशा तैयार रहते थे। आप देखिए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इसके अलावा दीगर सहाबा इकराम हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पड़े रहते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने के लिए। जहां एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआविनीन थे, आपके मददगार थे, आपके इशारे पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले थे, वहीं पर दुश्मनों की एक लंबी तादाद थी, दुश्मनों की एक बड़ी जमात थी। अबू लहब था, अबू जहल था, नज़र बिन हारिस था, उतबा था, उतैबा था, शैबा था, वलीद था, मुगीरा था, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने में खपा दी। और उनका अंजाम क्या हुआ? आप सीरत पढ़ें, उनका अंजाम क्या हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दुश्मनों को माफ भी किया। बहुत सारे मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को माफ किया और दुश्मनों ने कबूल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, आपके अखलाक, आपके किरदार, इसी तरीके से आपकी मुरव्वत को दुश्मनों ने भी तस्लीम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के सामने जाहिर किया। और अगर दुश्मन न होते, नबी के दुश्मन न होते, नबी की हासिदीन न होते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआनिदीन न होते, ये जो गोशा है अखलाक हसना का, जो है अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार का, ये कभी जाहिर नहीं होता। दुश्मनों की दुश्मनियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार के पहलू को जाहिर किया। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ जहां मुआमिनीन थे वहीं पर उनके दुश्मन भी थे। और आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मौजूदा एक ये भी है कि आपके दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी, आपके दुश्मन बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपके किरदार, आपकी शराफत, आपकी मुरव्वत और आपके सब्र और कुव्वत बर्दाश्त को तस्लीम किया। उन लोगों ने गवाही दी। और फजीलत तो यही है, वल फज़्ल मा शहीदत बिहिल आदा, जिसके फजीलत की गवाही दुश्मन दे वही अफजल इंसान है। जिस हक की गवाही दुश्मन दे समझो वही इंसान हक पर है। और नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत, आपकी अज़मत, आपके मर्तबे, आपके मकाम के कायल आपके दुश्मन भी थे। आपके अखलाक और किरदार की गवाही दुश्मन भी दिया करते थे। और आप देखिए हेरकल के बादशाह रूम, उस वक्त की सुपर पावर ताकत रूम का बादशाह हेरकल, उसने अबू सुफियान को अपने दरबार में बुलाया। जब अबू सुफियान हेरकल के दरबार में पहुंचे, अबू सुफियान अभी इस्लाम नहीं लाए थे, इस्लाम कबूल नहीं किए। अबू सुफियान मक्का के सरदार थे। हेरकल के दरबार में जाते हैं, हेरकल ने बहुत सारे सवालात किए अबू सुफियान से। अबू सुफियान ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के मुतालिक, मज़हब इस्लाम के मुतालिक और मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद के मुतालिक और कौन लोग हल्के इस्लाम में दाखिल होते हैं, किस तबके के लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं, इस ताल्लुक से हेरकल ने अबू सुफियान से बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवालात किए। अबू सुफियान ने तमाम सवालात के बिल्कुल सही जवाब दिए। आखिर में हेरकल जो एक क्रिश्चियन था, एक ईसाई था, उसने आखिर में एक तारीखी जुमला कहा, ऐ अबू सुफियान मा तक़ूलु हक़्क़न, अबू सुफियान अगर तुम ये बात सच कह रहे हो, अगर तुमने जो कुछ बयान किया ये अगर हकीकत है, अगर ये सच है, फसयमलिकु मौज़िअ क़दमई हातैन, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, रोम की सरजमीन पर मैं खड़ा हुआ हूं, जो तुम सच कर जो कह रहे हो अगर वो हकीकत तो वो सच है, जहां मैं खड़ा हुआ हूं बहुत जल्द वो नबी इस जगह का मालिक बनेगा। सयमलिकु मौज़िअ क़दमई हातैन, जहां मैं खड़ा हुआ हूं इस जगह का मालिक बहुत जल्द वो शख्स बन जाएगा। और अबू सुफियान ने मजीद ये कहा, लौ कुन्तु इंदहु लगसलतु अन क़दमैहि, अगर मैं उस नबी के पास होता, अगर मैं उस नबी के कदम में होता, लगसलतु क़दमैहि, मैं उस नबी के कदम को पानी से धुलता और उस पानी को पीता। यानी इतना मरऊब हुआ हेरकल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में सुनकर, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में साफ तौर से कह दिया, तुमने जो कुछ कहा है अगर ये हकीकत है, ये सच है, ये रोम बहुत जल्द हमारे हाथ से निकल जाएगा। और ये वही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा किराम ने रोम को फतह किया और फातिहाना तौर पर रोम में दाखिल हुए। तो बताने का मकसद यह है, हेरकल जो रोम का बादशाह था, दुश्मन था, ईसाई था, क्रिश्चियन था, उसने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को कबूल किया, नबी की अजमत की गवाही दी, नबी की फजीलत की गवाही दी। यहीं तक बस नहीं, बल्कि उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी अभी इस्लाम नहीं लाए थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार मक्का ने उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा अपना नुमाइंदा बनाकर। उरवा बिन मसूद जब नबी के पास आया, नबी के सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहा है, बातों में उरवा बिन मसूद अपने हाथ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को पकड़ गए। वहीं पर हज़रत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में तलवार थी। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस तलवार की नोक से उरवा बिन मसूद के हाथ पर टच करते हैं और कहते अखिर यदक अन लह्यत रसूलिल्लाह, उरवा अपना नापाक हाथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लही दाढ़ी मुबारक से दूर करो, अखिर हटाओ यदक अपने हाथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से, यानी अपने नापाक हाथ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और मुबारक दाढ़ी से दूर रखो। और वहीं पर उरवा बिन मसूद ने देखा सहाबा इकराम की वालियाना मोहब्बत को। नबी जब वज़ू करते हैं
थूकते हैं, सहाबा इकराम नबी के थूक को अपने हाथों पर रोक लेते हैं। जब नबी वजू करते हैं, वजू का पानी बचता है, सहाबा इकराम उस पानी पर टूट पड़ते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए। जब ये वालिहाना मोहब्बत उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी ने देखी, वहां से सीधा निकलता है, अपनी कौम के पास जाता है और कहता है, मैं कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नज्जाशी के दरबार में गया, मैंने किसी बादशाह के साथियों को, किसी बादशाह की रयाया को अपने हाकिम और अपने बादशाह की इतनी कदर और इज्जत और एहतराम करते हुए नहीं देखा मैंने जितना मोहम्मद के साथियों को मोहम्मद का अदब और एहतराम करते हुए पाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मंजर देखकर उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी इस्लाम ले आता है और उरवा बिन मसूद अस्सक़फ़ी ने कहा, मेरा मशवरा है, मेरी राय है, तुम मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों से न टकराओ, अगर तुम टकराओगे इस दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तो उरवा बिन मसूद एक काफिर थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों की अज़मत की गवाही दी, नबी और नबी के साथियों की फजीलत की गवाही दी। ये तो नबी के जमाने का वाकया। आप देखिए मौजूदा दौर में माइकल हार्ट ने एक किताब लिखी, द 100, लाइब्रेरी में वो किताब मौजूद है। इंसानी तारीख से उसने 100 अजीम शख्सियतों का इंतखाब किया। माइकल हार्ट एक यहूदी है, यहूदी राइटर, पूरी दुनिया से, पूरी आलमी इंसानियत से, इंसानी तारीख से उसने 100 इंसानों को मुंतखब किया, 100 इंसानों का उसने सिलेक्शन किया और उन 100 इंसानों को उसने मुंतखब किया इस हिसाब से, अपने नजरिए के हिसाब से कि दुनिया को सबसे ज्यादा किसने क्या कुछ दिया है। तो 100 लोगों में वो यहूदी रहते हुए सबसे पहले उसने पहली पोजीशन, अव्वल पोजीशन, नंबर 1 पर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। और उसने ये एतराफ किया, मैंने तमाम बहुत सारे लोगों की सीरत पढ़ी, बहुत सारे लोगों की लाइफ हिस्ट्री मैंने पढ़ी, लेकिन मैंने जहां तक पाया, मैंने जहां तक पढ़ा, मैंने जहां तक रिसर्च और मेरी जहां तक तहकीक है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम इंसान मैंने नहीं पाया। नबी से अजीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इंसान मैंने किसी को नहीं पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनी एतबार से और दुनियावी एतबार से इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। एक यहूदी रहते हुए उसने अपनी किताब में जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखता है। इसी तरीके से फ्रांस का बड़ा मारूफ मुफक्किर ला मार्टिन, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो पढ़ता है, इतना मुतासिर होता है नबी की लाइफ हिस्ट्री पढ़ने के बाद, इतना मुतासिर होता है, वो खुद लिखता है, मेरी जिंदगी का सबसे अहम वाकया, मेरी जिंदगी का सबसे अहम वाकया यही है, मैंने अपनी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सीरत पढ़ी है, आपकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है, और मैं नबी की सीरत से जितना मुतासिर हुआ हूं किसी और की सीरत पढ़कर इतना मुतासिर नहीं हुआ। बहुत सारे मुफक्किर ऐसे हैं हमारे हिंदुस्तान के, महात्मा गांधी, उनके बारे में आपने उन्होंने क्या लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? वो लिखते हैं कि मोहम्मद साहब ने दुनिया के अंदर मिलियनों लोगों के दिलों पर हुकूमत की और उन्होंने इस्लाम अपने अखलाक और किरदार के जरिए से फैलाया, तलवार के जोर पर इस्लाम नहीं फैलाया। बहुत सारे लोगों ने गवाही दी, वल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, फजीलत उसी की मानी जाती है, उसी की कबूल की जाती है जिसकी फजीलत की गवाही दुश्मन भी देते हैं। और नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की जरूरत है। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम करने की जरूरत है। और हम देखते हैं आए दिन इस वक्त जो है मुल्क हिंदुस्तान में और आलमी सतह पर भी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में नाजेबा जुमले कहे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गलत बयानियां होती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं। अभी पिछले दिनों हम सब जानते हैं फ्रांस में वहां पर एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताखाना कार्टून बनाया और सितम बालाए सितम यह है उसकी सरपरस्ती वहां की हुकूमत कर रही, वहां की हुकूमत कर रही उसकी सरपरस्ती। और बाद में जब मुसलमानों ने एहतजाज किया और फ्रांस की जब मसनूआत का बाइकाट किया गया तो वहां का जो सदर माइक्रोन है वो खुद आता और कहता है कि हमारा मकसद नबी की शान में गुस्ताखी करना नहीं था,
ہم تو اپنے ملک کا قانون بیان کر رہے تھے، جو آزادی رائے کا اظہار، یعنی ہر آدمی اپنے رائے کے اظہار کا حق رکھتا ہے، ہم اسے بیان کر رہے تھے۔ بہرحال ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر، جب ہمیشہ آئے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسے موقع پر سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلم حکمرانوں کی۔ مسلم حکمرانوں کو چاہیے یہ حضرت رسول کے خلاف کوئی پختہ قانون بنائے، اور دوسری چیز مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ جو ممالک ایسی حرکت کرتے ہیں ان ممالک پر سیاسی دباؤ ڈالیں تاکہ ایسی حرکت کرنے سے باز آ جائیں۔ اور تیسرا کام انہیں یہ کرنا چاہیے ان کے جو اپنے اپنے سفارت خانے ہیں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور عام مسلمانوں کی ذمہ داری اس تعلق سے یہ بنتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم موجودہ دور میں جیسے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا گیا اور اس کا اچھا خاصا اثر دیکھنے میں آیا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ حضرت ثمامہ بن اسال کی سیرت پڑھیں، جب وہ اسلام لائے، یمامہ کے گورنر تھے حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تو مکہ کے مشرکین اور کافرین سے مخاطب کر کے فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہارے پاس اناج کا ایک دانہ نہیں بھیجوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہ دے دیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مکہ کا معاشی بائیکاٹ کیا، تجارتی بائیکاٹ کیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے انہیں واپس کر دیا، ایک اپنی پوری ٹیم تیار کی اور کفار مکہ کا معاشی اور تجارتی بائیکاٹ کیا، قافلے کو روکا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود مکہ کا معاشی بائیکاٹ کرنے کے لیے، تجارتی بائیکاٹ کرنے کے لیے ان کے تجارتی قافلے کو روک لیا۔ تو یہ سب چیزیں کرنا جائز اور درست ہے تاکہ ہم اس ملک پر دباؤ بنا سکے۔ اور دوسری اہم چیز ہمیں یہ کرنی ہے، ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ ہم صرف اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اگر کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، کسی بھی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہو، حضرت عزیر علیہ السلام، کسی بھی نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اور تیسرا اہم کام میں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہم مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اپنی علاقائی زبان میں جو ہماری مراٹھی زبان ہے، اس زبان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لٹریچر تیار کریں، مراٹھی زبان میں تیار کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ آج لوگوں نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہمارے نبی کو سمجھا نہیں، ہمارے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ آج لوگ وہی دیکھتے ہیں، وہی سنتے ہیں جو میڈیا سناتی ہے، جو میڈیا بتاتی ہے، لوگ وہی جانتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم مسلمان ہیں، جس طریقے سے ہم نبی کی سیرت کو پڑھتے ہیں اردو میں، عربی میں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علاقائی زبانیں میں ہمارے جو برادران وطن وہ جو زبان سمجھتے ہیں ان زبانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لٹریچر تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور انہیں بتانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا مساوات۔ اسی طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے اور کیسا معاملہ کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمدلی کیا تھی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کے سامنے رکھنا ہے تاکہ وہ اسلام کی سچی تعلیمات کو جان سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچان سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔